I'm Dr. Pratik Vishwakarma. I am a vitreoretinal consultant at SM Vishwakarma Memorial Eye Hospital. I have a clinic at Sitabardi. So I will start with this topic, and since the topic should not be a monologue where I am only speaking and you will get bored with that, so I decided to show you multiple cases, and I wanted it to be an interactive session rather than I am just speaking. So we'll start with directly with cases. I'll show you the history of patient's history. I'll since there are, as sir told me, there are some PGs as well. I'll just wanted to raise your hands if there are PGs over here. Okay. Okay. This section is of PGs and that. Okay. So we'll interact. We'll have a discussion on. You can ask me anything in between if you want, and be very free in discussing. Okay. So let's start the topic. Okay. Before starting, this is the retinal picture which I am showing here, and this is the macula which is okay. So between the arcade, the disc and the arcade, there is the macula which is the center point for today's topic, and the main vision, the retinal vision comes from this point. Okay. So coming to the case number 1, this is a 55-year-old female. She is a school teacher who has come with blurring of central vision in both the eyes for 3 months. The vision is worse in right eye, and she is struggling to read her newspapers. Her medical history: she is having type 2 diabetes since 10 years. She is having HbA1c of 8.5. She is also hypertensive and no prior treatment of eye. Her vision is reduced to 6/60 in right eye and 6/24 in left eye. She denies any floaters or flashes. So what's your differential diagnosis for bilateral vision loss in diabetic patients? Anyone from PGs, what do you think it could be? क्या हो सकता है? एक लेडी है 55 साल की जिसका विजन कम हो गया है दोनों आँख में और डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, शुगर बढ़ा हुआ है. So what do you think? Yes, it's a diabetic retinopathy. And any other thing you can also think? Most common? क्या हो सकता है? ARMD हो सकता है. Yes. And most common you see cases. Most common case क्या होते हैं एज के साथ? Cataract. Yes. So the most common thing you can think of it is cataract, diabetic, ARMD, right? So what test would you do for this patient? क्या investigate करोगे सबसे पहले आप? Slit lamp examination तो करोगे. दूसरा, you will go for fundus examination, fundus test, and you will go for an OCT test, right? So we'll see the finding for this patient. Now this is the fundus photo of this patient, and this is the OCT image of this patient. So what do you see in this patient? Fundus में क्या दिख रहा है? Anyone who can just tell me? So this is definitely not a normal fundus, right? So the central portion of the fundus, that is the macula, shows yellowish deposits, which is actually lipid depositions. Also, what you can see, there are hemorrhages, multiple hemorrhages, and if you can, if there is a pointer that will be helpful. If there is not, it's okay. So if you can see, there is a ring formation that is called a सर्सिनेट ring. जो माइक्रो एन्यूरिज्म्स होते हैं वो लीक करते हैं, उसके आजू बाजू लिपिड डिपोजिशंस हो जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ए सर्सिनेट रिंग. ठीक है. So this is a case. Also you can see not only at the macula, there are hemorrhages everywhere else which is present. So this is a case of somewhat severe non-proliferative diabetic retinopathy with macular edema. Okay. So diabetic retinopathy can be differentiated into non-proliferative and proliferative. Okay. अब proliferation और non-proliferation को clinically इस केस में define करना थोड़ा difficult है. तो ideally this cases should undergo an fundus fluorescein angiography, जिसमें आपको देखना है कि न्यू वेस्कुलराइजेशन तो नहीं है. अगर न्यू वेस्कुलराइजेशन है जिसमें खून की नई नसें बनी है, तो then it will go into proliferative case. Now, what else you can see in OCT?
जो नीचे वाला इमेज है OCT में क्या दिख रहा है आपको? एनीथिंग एबनॉर्मल? OCT you may have not seen that much, but what we can see here in OCT is this is the ये whiteness जो है, this is the basically the hard exudate deposits in the intraretinal space, जो रेटिना के अंदर hard exudates deposited है. और दूसरा कि there is a subretinal fluid which is there, रेटिना RPE से उड़ गया है, ठीक है? So this is another cause of diminution of vision in this patient. Okay? So what diagnosis we have made? This is a case of moderate to severe non-proliferative diabetic retinopathy with macular edema. Okay. So as I already told you, how would you classify severity of diabetic retinopathy? From non-proliferation, mild, moderate, severe to proliferative diabetic retinopathy with and without macular edema. Okay. So अब ये पेशेंट तो आ गया, अब इसको करेंगे क्या, ट्रीट कैसे करेंगे? हाउ वुड यू प्रोसीड? एनीवन फ्रॉम द पीजीज? हाउ वुड यू गो फॉर द ट्रीटमेंट? मैडम? Yes, first and the foremost is you need to control the diabetes. Diabetes को कंट्रोल होने में it will take time. It is not that it will happen, but how will you improve the patient's vision in this case? What हमारे पास क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस है? एंटी-VEGF, करेक्ट. एनी अदर ट्रीटमेंट मोडालिटी? लेजर, समवन सेड लेजर. सो वी हैव लेजर्स, वी हैव एंटी-VEGF, अनदर एनीथिंग एल्स? 3-4 ही हथियार हैं हमारे पास में. वी हैव स्टेरॉइड्स एज वेल, right? And the last thing is surgery, which is not required in this case. Okay, so for the treatment we should have a good glycemic control. We can do lasers, we can give anti-VEGF and we have steroids. Steroids में भी हमारे पास 2 टाइप के steroids हैं. एक IVTA जिसको हम डायरेक्ट ट्राइमसिलोन एसीटेट जो हम डायरेक्ट इंजेक्ट कर सकते हैं, एंड दूसरा we have Ozurdex implant आता है, that I will show you later. So ideally this patient should undergo a fundus fluorescein angiography, and if there are too many new vascularization, we have to undergo panretinal photocoagulation. Also what we can do in this case is we can lasers the micro aneurysm, focal laser हम कर सकते हैं उसको. And the first line of treatment in any case of moderate to severe NPDR with macular edema is to give anti-VEGF injection. And even in anti-VEGF injections हमारे पास 3-4 options है. पहले what we used to give is bevacizumab, that is Avastin. पहले बहुत frequently देते थे. It is cost effective, but it has some risk of, क्योंकि it's a multi-vial drug, so it has to be given from the same vial, so it carries a risk of infection. Then came ranibizumab, which is a single vial drug, जिसमें एक पेशेंट को एक ही ड्रग लगता है, so that minimizes the risk of infection, and it is the first line treatment for any case with macular edema in diabetic. Third, उसके भी ऊपर कुछ ड्रग्स आए हैं ranibizumab के ऊपर, that are aflibercept जो आइलिया ब्रांड से होता है, and brolucizumab जो अभी पेजिनेक्स नाम का ड्रग आया है. इनमें डिफरेंस ये है कि अवास्टिन का जो बेवासिजुमैब का जो मॉलिक्यूल का साइज है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो उसका पेनिट्रेशन कम है. रेनिविजुमैब का अगेन जो साइज है वो कम किया गया है, और जो आइलिया है और पेजिनेक्स है उनका साइज और कम किया है, तो इट इंक्रीजेज द पेनिट्रेशन एंड इंक्रीजेज द एफिकेसी एंड लास्टिंग ऑफ द ड्रग इन द आई. ओके, तो ज़्यादा समय तक एक्ट करता है. So the first line treatment in these cases is anti-VEGF injection. So see what happens with after giving anti-VEGF injection. So this was the patient which was given ranibizumab, and see the macular edema has subsided significantly. ऊपर का जो डोम शेप एलिवेशन है, सबरेटिनल फ्लूइड है, वो कम हो गया है. पेशेंट का विजन जो पहले कम था वो इम्प्रूव हो गया है 6/6 पे. ओके, सो कमिंग टू केस नंबर 2. So this is Mr. Patel, a 60-year-old accountant who has come with blurring of vision in both eyes for 5 months. The vision is worse in left eye. Again, जब भी कभी macular edema होगा तो पेशेंट को पढ़ने में हमेशा दिक्कत जाएगी. ओके,
डिस्टेंट विजन तो कम होगा ही, साथ में नज़दीक की विजन भी उसमें हैम्पर होगी. He again has type 2 diabetes since 14 years. As you can see, HbA1c is again raised to 8.8. The most important factor when you see a diabetic patient is to check his or her fasting, postprandial and HbA1c status. HbA1c shows you the control over 3 months, 3 to 4 months. So it should be less than 7. Less than 7 अच्छा indication है. इसका patient का 8.8 है. Also, if the patient is diabetic and hypertensive, so and also in such cases look for lipidemia. बॉडी का लिपिड प्रोफाइल देखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें सारी contributing factors हैं. This patient has already received 3 doses of anti-VEGF injection ranibizumab in past 6 months ago. ठीक है, तो इनका विजन जो है राइट आई का 612 है, नेक्स्ट आई का 660 है. He denies any flashes, floaters and reports mild difficulty in night vision as well. So this is the fundus picture and this is the OCT. What is your differential diagnosis in this case, patient? This is again a diabetic moderate to severe case of NPDR with macular edema. लेकिन ये पेशेंट को ऑलरेडी 3 doses of ranibizumab लग चुके हैं. Already 3 doses he has received. This is the again he has come for treatment. अब क्या करेंगे? How will you proceed with this patient? Anyone? PRP can be done, but after fundus fluorescein angiography. See, PRP का रोल क्या है? PRP हम तब करते हैं अगर रेटिना में हमको न्यू वेसल्स दिखती हैं. न्यू वेसल्स अगर दिखती है तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वेजअप रिलीज होता है न्यू वेसल्स के लिए. तो वो वेजअप को काउंटर करने के लिए हम PRP करते हैं, राइट. सो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू डू PRP इन एवरी केसेस ऑफ नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक. ओनली इन सीवियर केसेस विच आर नॉन कंप्लायंट वी गो फॉर PRP. सो हाउ विल यू ट्रीट दिस पेशेंट इफ इट इज़ नॉन प्रोलिफरेटिव? If it is non-proliferative case, patient has already received anti-VEGF, which the efficacy we don't know कि उसने उस समय उसको क्या इफेक्ट मिला है. So what we can go in such cases is, अब 6 महीने पहले अगर उसको anti-VEGF मिला है और अभी हमको स्टेटस मालूम नहीं है कि वो उस समय anti-VEGF का कैसा इफेक्ट आया है, so we can again go for a 4th dose of anti-VEGF and see how the patient is responding. Okay. If the patient is not responding well to the anti-VEGF, then in such cases can be termed as refractive diabetic macular edema, which are not responding with anti-VEGF. In such cases, we go with higher medication or we change the anti-VEGF molecule. अब जैसे इसमें ranibizumab लगा हुआ है और अगर उससे इफेक्ट नहीं आ रहा है तो हम higher anti-VEGF में शिफ्ट हो सकते हैं, that is aflibercept or Peginex. But these drugs are very costly. Okay. So we decided to give this patient Ozurdex implant. It's a steroid. Basically it's a steroid. But जो steroid का इफेक्ट है ये 3 महीने तक रहता है, धीरे धीरे रिलीज होता है. ये डेक्सामेथासोन का इम्प्लांट रहता है, आँख के अंदर डालते हैं इसको. और द एडवांटेज इट हैज़ ओवर एंटी-VEGF इज कि जो इन्फ्लामेटरी कंपोनेंट है, एंटी-VEGF जो है सिर्फ VEGF के ऊपर एक्ट करता है. ओजुडेक्स जो है VEGF के साथ साथ अदर इन्फ्लामेटरी मार्कर्स पे भी एक्ट करता है, तो ज़्यादा उसका स्पैन ज़्यादा है. तो फिर इसको फर्स्ट लाइन क्यों नहीं यूज़ करते जब इसका इफेक्ट ज़्यादा है? इसका रीज़न ये है ओजुडेक्स को फर्स्ट लाइन यूज़ नहीं करने का, क्योंकि इसके साथ 2 कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड रहते हैं. कॉम्प्लिकेशन नंबर 1 कि इसमें थोड़ा सा IOP जो इंट्राओक्युलर प्रेशर बढ़ने का, स्पाइक बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं रिलेटिवली. एंड आफ्टर 2 to 3 डोजेस इसमें थोड़ा सा कैटरैक्ट होने के भी चांसेस होते हैं. इसलिए हमेशा anti-VEGF इंजेक्शन ranibizumab इज द फर्स्ट लाइन ड्रग, एंड आफ्टर इफ इट इज नॉट इफेक्टिव देन वी शिफ्ट टू Ozurdex. एम आई गोइंग लिटिल हायर कि बहुत ज़्यादा ये तो नहीं हो रहा. So this patient was given Ozurdex implant. और जो Ozurdex इम्प्लांट है ये आँख के अंदर इस तरीके से दिखता है. ये जो येलोइश इम्प्लांट है ना, ये जब रेटिना में हम इनडायरेक्ट में देखते हैं तो इस तरीके से दिखता है.
एंड इसका रिलीज जो है बहुत धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ 3 to 4 मंथ इसका इफेक्ट रहता है. हाँ, धीरे धीरे अपने आप एब्जॉर्ब हो जाता है. थैंक यू. So as you can see, after only 2 weeks, this edema has subsided. Okay. So now this is a test for you. This is the third case. Okay. So this is Mr. Khan, 62-year-old taxi driver. He has again come with progressive blurring of vision in left eye in 6 months. He is struggling to read road signs, and his left side is less affected, more affected. Sorry. He again has type 2 diabetes for 12 years. HbA1c is again 9.1. He is hypertensive, and there is no prior eye surgery. His vision is reduced in both the eyes, 6/60 and counting fingers. He denies any flashes and floaters. Why I am asking floaters to this patient? Diabetic patient में ऐसा क्या हो सकता है कि floaters आपको पूछना है? There can happen vitreous hemorrhage. Vitreous hemorrhage की वजह से floaters complaint patient कर सकते हैं. Okay? So again, what are the differential diagnosis for blurry vision in diabetic patient with poor glycemic control? Diabetic retinopathy जो आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा. Again, cataract. What imaging modalities would you recommend this patient? Fast अभी तो हो गया. Again, fundus photo, fundus examination, OCT, angiography. This is the basic 3 tests which you will do in any diabetic patient. Okay. So we have already discussed what. So this is the fundus picture. What anyone from the PGs? What are these? White deposits. These are hard exudate, right? And ये जो मैं बता रहा था सर्सिनेट रिंग, this is the सर्सिनेट रिंग. Okay. As you can see, there are many multiple microaneurysms in the macula, and यहाँ से जो liquid deposition होता है, release होता है microaneurysm से, they एक सर्सिनेट सर्कल बना देता है. क्यों? क्योंकि हर डायरेक्शन में लिपिड रिलीज हो रहा है. ठीक है, तो ये सर्कुलर फॉर्म में दिखेगा आपको. There are multiple dot hemorrhages. Okay, so this is a case of severe non-proliferative diabetic retinopathy. We will advise this patient. We will go this patient for angiography, whether to find there are new vascularization or not. Okay, let's see what is the FFA finding. So this is the FFA. What are you seeing in this patient? So जहाँ पर सर्सिनेट रिंग था वहाँ पे देखिए बहुत सारे वाइट लीकेजेस हैं. तो दीज लीकेजेस आर बेसिकली माइक्रो एन्यूरिज्म्स विच आर लीकिंग. ओके, लेट फेज में ये वाइटनेस इनकी और बढ़ जाएगी क्योंकि डाई और लीक होगा. ओके, और जहाँ हिमरेजेस था ये देखिए वहाँ यहाँ ब्लैक स्पॉट दिखेगा. दिस इज कॉल्ड एज ब्लॉक फ्लोरेसेंस. जहाँ हिमरेजेस है वहाँ से लाइट पास नहीं होती रेटिना के अंदर, तो आपकी ब्लड वेसल्स उसमें दिखेगी नहीं. ठीक है, तो दिस इज द अर्ली फेज ऑफ FFA. अब देखिए अंतर देखिए, जैसे जैसे स्कैन आगे बढ़ेगा यहाँ पर लीकेज बढ़ते चले जाएगा, वाइटनेस यहाँ पे बढ़ती चली जाएगी, यहाँ पे स्पॉट का साइज बढ़ते चले जाएगा. ये देखिए लेट फेज में यहाँ पे बहुत सारा लीकेज दिखेगा. और मैक्यूला में, क्योंकि वहाँ पे मैक्यूला में OCT में इडिमा था, तो जहाँ पर इडिमा है वहाँ पे भी ये लीकेज बढ़ चुका है. ओके, what you are not seeing is any ischemic changes and any new vessels. New vessels अलग तरीके से दिखते हैं. So this is a case of severe non-proliferative diabetic retinopathy. So इसमें लेजर करने की जरूरत यूजुअली तो नहीं है, लेकिन अगर पेशेंट का कंप्लायंस अच्छा नहीं है तो वन शुड गो फॉर PRP एज वेल, पैन रेटिनल फोटोकोएगुलेशन इसमें करना चाहिए. क्यों? क्योंकि बहुत बार पेशेंट वापस हमारे पास आएगा नहीं, और जब वो आएगा तो कॉम्प्लिकेशन के साथ आएगा. कॉम्प्लिकेटेड डायबिटिक रेटिनोपैथी, विट्रियस हेमरेज. ठीक है, सो व्हाट डू यू सी इन OCT ऑफ दिस इमेज? जो जब भी पहले के 2 OCT मैंने आपको दिखाया था उसमें और इसमें क्या डिफरेंस दिखता है आपको? इज दिस टिपिकल डायबिटिक मैक्युलर एडिमा? एनीवन? उसमें कैसा था पिछले वाले? इसमें देयर वाज अ ऐसा डोम शेप एलिवेशन था, सबरेटिनल फ्लूइड था. इसमें क्या है कि यहाँ पे पूरा ब्लैक है, ये दिख रहा है, ये पूरा ब्लैक एरिया. ब्लैक एरिया इंडिकेट्स देयर इज अ फ्लूइड इन द रेटिनल लेयर्स. ओके, सो दिस इज अ टाइप ऑफ स्पॉन्जी मैक्युलर एडिमा.
मैक्युलर एडिमा दो टाइप के हम डिफाइन करते हैं, एक सिस्टॉइड मैक्युलर एडिमा जिसमें सिस्ट बने हुए हैं, एंड जब बहुत सारे सिस्ट मिल जाते हैं तो ये बनाता है स्पॉन्जी मैक्युलर एडिमा। ये देखिए ये जो है ये सिस्ट है, लेकिन ये पूरे रेटिना में पूरा स्पॉन्जी फॉर्म में है। और व्हाट एल्स यू कैन सी इज दिस वाइट लाइन, ये दिख रहा है, ये एक रेटिना के ऊपर भी है और एक ऐसा चिपका हुआ है। तो व्हाट इज दिस? एनीवन फ्रॉम पीजेस? दिस इज एपीरेटिनल मेम्ब्रेन, और ये जो है ये विट्रोमैकुलर ट्रैक्शन है। सी द विट्रियस जो है रेटिना को चिपका हुआ रहता है। तो डायबिटीज में क्या होता है कि देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ विट्रियस, जिसमें वो रेटिना को साथ में, जैसे प्रोलिफरेटिव केसेस में क्या होता है, रेटिनल डिटैचमेंट होता है, आपने सुना होगा। तो वो क्यों होता है कि जो विट्रियस है वो रेटिना में जो न्यू वेसल्स बनती हैं, जो नई ब्लड वेसल्स बनती हैं, वो रेटिना के सरफेस के ऊपर से विट्रियस में जाती है, और विट्रियस उसको साथ में लेके ऊपर आता है। तो इसके कारण रेटिना भी खींचा चला जाता है उसके साथ में। सो दिस इज द इंटरफेस वेयर देयर इज अ विट्रोमैकुलर ट्रैक्शन एंड इट इज पुलिंग द रेटिना ऊपर। तो देयर इज अ कंपोनेंट of diabetic macular edema along with vitreomacular traction, which is called the increase in size of retinal thickness उसकी बढ़ गई है। Are you getting me? ये समझ में आया? So now how would you treat this patient? उसमें तो हमने इंजेक्शन लगा दिया था, अब क्या करेंगे इसमें? Anyone? Any guesses? Just random guesses. इसमें भी इंजेक्शन लगेंगे क्या? कितने लोग चाहते हैं इसमें इंजेक्शन लगाए? हाथ ऊपर कर। क्या करना चाहिए? लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? लगाना चाहिए। हाथ ऊपर कौन कीजिए, फिर हाथ ऊपर कीजिए। वन ओके। मैक्सिमम पीपल आर नॉट इन फेवर ऑफ इंजेक्शन। तो नेक्स्ट क्या है? अगर इंजेक्शन नहीं लगाना है तो क्या करना है? yes? क्या करेंगे इसमें? ये टाइप का पेशेंट है, आपके पास आया है ट्रीटमेंट के लिए, व्हाट विल यू डू? सो इस टाइप के पेशेंट्स में आइडियली हम इंजेक्शन अगर लगा भी दें तो इंजेक्शन क्या करते हैं, जो आपका एंटी वेजेफ जो वेजेफ का कंपोनेंट है उसको कम करेंगे। तो इंजेक्शन विल हेल्प इन दिस पेशेंट बट विल नॉट बी अ डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। क्यों? क्योंकि इसमें दो कारण की वजह से एडिमा है। नंबर वन कि जो वेजेफ रिलीज हुआ है, केमिकल रिलीज हुए हैं, उसको तो इंजेक्शन सबसाइड कर लेगा, लेकिन ये जो इंटरफेस है ERM का और विट्रोमैकुलर ट्रैक्शन जो है, ये इंजेक्शन इसको सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो सच केसेस विल रिक्वायर सर्जरी टू रिमूव दैट इंटरफेस, उसको क्लीन करना जरूरी है। सो इन सच केसेस वी डू गिव इंजेक्शंस, बट आफ्टर गिविंग इंजेक्शन वी गो फॉर सर्जरी। क्यों? क्योंकि इंजेक्शन जो है एंटी वेजेफ इंजेक्शन, व्हाट इज एंटी वेजेफ? वेजेफ का एंटीडोट है। व्हाट इज वेजेफ? वेजेफ इज वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। इसके नाम में ही है कि ये वेसल्स को प्रोलिफरेट करता है। ओके, सो एंटी वेजेफ क्या करते हैं कि जो ऑलरेडी वेसल्स है उसमें जो केमिकल है उसको कम कर देते हैं। तो ड्यूरिंग सर्जरी हमारा जो सर्जरी के समय जो ब्लीडिंग के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। आर यू गेटिंग इट? तो ब्लीडिंग के चांसेस कम हो गए तो इंट्रा ऑपरेटिवली सर्जरी बहुत इजी हो जाती है। तो इन सच केसेस वी गिव एंटी वेजेफ इंजेक्शन एंड आफ्टर 15 days या 7 days वी प्लान फॉर सर्जरी इन सच केसेस। ओके, सो हाउ डज VMT अफेक्ट ट्रीटमेंट प्लानिंग? इट अफेक्ट आपको ये प्लान करना है कि सर्जरी कितने दिन में करना है, कब करना है, डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द केस। अगर समझ लीजिए विट्रोमैकुलर ट्रैक्शन है, लेकिन अगर पेशेंट का विजन अच्छा है तो विल यू गो फॉर सर्जरी? एक केस सिनेरियो देता हूँ जिसमें विट्रोमैकुलर ट्रैक्शन है लेकिन पेशेंट का विजन 6-12 है, पेशेंट का विजन अच्छा है, ट्रैक्शन भी है, तो इन दैट केस विल यू गो फॉर सर्जरी और विल यू गिव ओनली इंजेक्शन? Yes, you will give injection because surgery itself carries an inherent complication risk. तो हम we would rather wait for such cases कि अगर विजन कम होती है, डिटोरिएट होती है, then and then only we will go for surgery. So I think I have already given you कि क्या करना चाहिए, लेजर करना चाहिए, सर्जरी करना चाहिए और क्यों करना चाहिए. Okay? So this is a case where there is a vitromacular traction and there is an epiretinal membrane. ये यहाँ पे जो इसके पीक पे है ये एक ट्रैक्शन है. ओके, सो
इसमें विजन कैसे डिटोरिएट होता है? यूजुअली जब मैक्युलर एडिमा होता है तो देयर इज अ ब्लरिंग ऑफ विजन, ओके। इन सच केसेस जिसमें विट्रोमैक्युलर ट्रैक्शन है तो पेशेंट को मेटामॉर्फोप्सिया की कंप्लेंट होती है, यानी वो सीधी लाइन सीधी नहीं दिखती है, वो टेढ़ी मेढ़ी दिखती है। तो ये पेशेंट को पूछना बहुत ज़रूरी है इन केसेस ऑफ विट्रोमैक्युलर ट्रैक्शन कि स्पेशली ERM केसेस, एपिरेटिनल मेम्ब्रेन, अगर ये मेम्ब्रेन आपको दिख रही है ऐसी ऊपर, तो ऐसे पेशेंट में उनको ये पूछना जरूरी है कि आपको सीधी लाइन सीधी दिख रही है कि इट इज़ वेरी। अगर विजन कम भी है और विजन 612 618 भी है, लेकिन एक पेशेंट इज कंप्लेनिंग ऑफ मेटामॉर्फोप्सिया कि उनको सीधी लाइन पढ़ते समय वेवीनेस दिख रहा है, देन इट इज़ एन इंडिकेशन फॉर सर्जरी, ओके। तो हर पेशेंट एक जैसा नहीं है, हर पेशेंट की कंडीशन और विजन को देखते हुए वी हैव टू टेक अ कॉल कि वेदर वी हैव टू गो फॉर सर्जरी और नॉट। सी इधर in this case there is a focal traction, okay, and in this case there is a table top traction, ऐसा टेबल के समान उठा हुआ है पूरा का पूरा, and in this case there is a focal traction, so sometimes this case becomes very difficult to manage, क्योंकि इसमें जो ये जो white line है ना, ये दिख रही है ये वाली और ये वाली लाइन, तो we have to go between this plane and remove this plane, okay, so surgery becomes a little complicated. These are the actual results of the surgery after removal of epiretinal membrane. पूरा विजन जो पेशेंट का रेटिना है नॉर्मल से आता नहीं है ऐसे केसेस में, दिस इज द फाइनल आउटकम ऑफ दिस पेशेंट। नॉर्मल आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि रेटिनल आर्किटेक्चर जो है, जो 10 लेयर्स है रेटिना के, वो काफ़ी चेंज हो चुके होते हैं बाय द टाइम वी प्रोसीड फॉर सर्जरी। वो ज़्यादा हाईवे तो नहीं जा रहा है, ठीक है। सो कमिंग टू अनदर केस, थोड़ा सा डायबिटीज से बाहर जाते हैं, ओके। दिस इज अ 68-year-old मेल who came with dark spot in the center of his eye for 2 months with difficulty in reading fine prints, okay. Report straight line appearing wavy, अब इसमें straight line इसको wavy दिखने लग गई है, ठीक है। तो मेडिकल हिस्ट्री में he has hypertension, there is no diabetes, he is a chronic smoker since 20 years with no prior eye disease, vision in left eye is reduced to 2 feet finger counting. So what are your differential diagnosis in such cases? Anyone, any random cases? वेवीनेस मैंने अभी बताया कौन से कंडीशन में होता है, विट्रोमैक्युलर ट्रैक्शन में वेवीनेस होता है, तो यू कैन थिंक ऑफ दैट। एनी अदर कंडीशन जिसमें वेवीनेस हो सकता है? बहुत कॉमन कंडीशन है ARMD, यस, बहुत कॉमन कंडीशन है। आई एम नॉट गोइंग इनटू वेरी डिफिकल्ट केसेस। बेसिक केस ARMD में आपको अगर वेवीनेस है, पेशेंट को सेंट्रल विजन 2 महीने से कम है, तो और क्या क्या सोचोगे आप? एनी रैंडम केसेस प्लीज। हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी कैन कॉज बट इट इज यूजुअली बायलैटरल, है ना, इसमें यूनिलैटरल। हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी में भी मैक्युलर एडिमा हो सकता है एसोसिएटेड, लेकिन यूजुअली ये ग्रेड 4 हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी जब आते हैं ना, ये बायलैटरल कंडीशन लेकर आते हैं, so that is ruled out. Next, anything, any cases random? RD again, RD में सेंट्रल स्पॉट में डार्क स्पॉट, यानी टोटल रेटिनल डिटैचमेंट में ऐसा होना चांसेस कम है। इसका मतलब क्या है, अगर सेंट्रल स्पेस में डार्क स्पॉट है यानी मैक्यूला ही इन्वॉल्व है, बाकी जगह से पेशेंट को दिख रहा है, तो RD यूजुअली डजंट प्रेजेंट लाइक दैट। उसमें टोटल डिटैचमेंट होगा या आधा पेशेंट बोलेगा मुझे आधा हिस्सा नहीं दिख रहा है, आधा दिख रहा है, so RD is ruled out again. Next, PTC again, but dark spot is yes can happen. PPC में भी central dark spot दिख सकता है पेशेंट को, very good. और सबरेटिनल हेमरेज, yes, मैक्यूला में जहाँ पे मैक्यूला फोविया है वहाँ पर हिमरेज आ गया, हिमरेज का एक स्पॉट आ गया, जिसके वजह से आपको सेंट्रल एरिया नहीं दिख रहा है। लेकिन इसमें मेडिकल हिस्ट्री बहुत सिग्निफिकेंट है कि पेशेंट इज स्मोकर, ठीक है, तो इट गोज मोर इन द फेवर ऑफ ARMD, ओके, क्योंकि ARMD पेशेंट्स में स्मोकिंग एक बहुत बड़ा अच्छा रिस्क फैक्टर है। सो लेट्स सी द फंडस पिक्चर। व्हाट डू यू सी इन द फंडस पिक्चर?
yes, subretinal hemorrhages is there. Okay. अच्छा, एक और चीज़, why this is subretinal hemorrhage and why this is not रेटिना के ऊपर हेमरेज क्यों नहीं है और सबरेटिनल हेमरेज क्यों है? हाउ विल यू टेल दैट? या इंट्रारेटिनल हेमरेज नहीं, हाउ विल यू डिफरेंशिएट? आप फंडस में 90D करोगे तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि ये रेटिना के नीचे है कि रेटिना के ऊपर है? बहुत बेसिक चीज़। एनीवन? एकदम उसमें देखना ये है कि आपको ब्लड वेसल्स दिख रही है कि नहीं। रेटिना के नीचे अगर ब्लड है तो आपको ब्लड वेसल्स दिखेगी रेटिना से जाती हुई, और अगर रेटिना में या रेटिना के ऊपर हेमरेज है तो आपको ब्लड वेसल्स नहीं दिखेगी। अभी इसमें देखिए, ये जो है ये इसमें से पास होते हुए दिखेगी आपको। ये पिक्चर उतना क्लियर नहीं है लेकिन इसमें ब्लड वेसल्स दिख रही है जाते हुए। सो दिस इज अ सब रेटिनल हेमरेज। एंड अगर आप ये, क्योंकि 2 डायमेंशनल इमेज है लेकिन आप इनडायरेक्ट या 90D में देखोगे तो दिस रेटिना इज लिटिल एलिवेटेड, थोड़ा सा ऊपर आया हुआ है। सो व्हाट डिफरेंशियल डायग्नोसिस विल यू कीप इन दिस केस? We have discussed this. This is the case of wet ARMD. Okay, wet ARMD क्यों और dry AMD क्यों नहीं? Hemorrhages है। Right. So dry AMD में usually it is associated also you will see drusense. सिर्फ drusense देखेंगे और ऐसा hemorrhagic पिक्चर नहीं दिखेगा dry AMD में, बिकॉज इसका पिक्चर ही वेट AMD का है, इसलिए ये मेड द डायग्नोसिस ऑफ वेट AMD। ओके, सो अगेन अब ये पिक्चर तो देख लिया, अभी इन्वेस्टिगेशन क्या करोगे? 2-3 इन्वेस्टिगेशन ही हमारे पास। फंडस एग्जामिनेशन तो हो गया, नहीं OCT करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट, और नहीं मैडम इन्वेस्टिगेशन बताइए पहले। FFA एंड एक और इन्वेस्टिगेशन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है वेट AMD के केसेस में, लेकिन यूजुअली हम लोग करते नहीं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन काफ़ी कॉस्टली है, एंड दैट इज ICG, इंडोसाइन ग्रे। ICG कौन सा लेयर देखता है, कौन सा लेयर पता चलता है हमको? उसमें कोरियो कैपिलरीज का लेयर पता चलता है, और FFA में हमको यूजुअली पता चलता है रेटिनल लेयर्स के बारे में, उसके ब्लड वेसल्स के बारे में। ICG में कोरियो कैपिलरीज के बारे में ज़्यादा जानकारी होगी। ठीक है, बेसिकली AMD इज अ डिजीज ऑफ कोरियो कैपिलरीज, इट्स नॉट अ डिजीज ऑफ रेटिना, इट्स अ कोरियो कैपिलरीज का प्रोलिफरेशन होता है, तो ब्लड वेसल्स रेटिना में आ जाती है कोरियो कैपिलरीज की, है ना। तो ICG इज अगेन एन वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, बट बिकॉज इट इज नॉट अवेलेबल रूटीनली वी डोंट डू इट, वी डू एंजियोग्राफी। और एक नया इन्वेस्टिगेशन है जो एंजियोग्राफी के बिना भी हम कर सकते हैं, वो क्या है? रिलेटेड टू OCT, इट्स अ OCT एंजियोग्राफी। OCT एंजियोग्राफी एक न्यू मोडालिटी है जिसमें एंजियोग्राफी हम ना भी करें तो उसमें OCT में भी एंजियोग्राफी समझ में आ जाता है, लेकिन इट्स अ डिफरेंट, टोटली डिफरेंट, यानी एंजियोग्राफी का अलग रोल है, OCT एंजियोग्राफी का एक टोटली डिफरेंट रोल है। ठीक है, तो वी वॉन्ट गो डीप इनटू दैट। हम अभी ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं कि ठीक है, इन्वेस्टिगेशन हमने कर लिया OCT एंजियोग्राफी, तो क्या दिखेगा OCT में? क्या दिखेगा? व्हाट विल यू सी इन OCT? व्हाट यू एक्सपेक्ट टू सी इन OCT? एलिवेशन। हाँ यस, ड्रूसेंस तो इसमें है ही नहीं मैडम अभी। हाँ, अगर ड्रूसेंस होते तो ड्रूसेंस के साथ ड्रूसेंस भी दिखते हैं और वेट AMD के फीचर्स भी दिखते हैं। तो मैंने जैसे बताया, इट्स अ डिजीज ऑफ कोरियो कैपिलरीज वेयर ब्लड वेसल्स ऑफ कोरियो कैपिलरीज इज गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड इनटू द रेटिना। तो हमको इसमें जो अब दोनों के बीच में कौन सा लेयर है? पिगमेंट एपिथेलियम। तो देयर विल बी अ ब्रेक इन पिगमेंट एपिथेलियम, देयर विल बी एन एलिवेशन ऑफ पिगमेंट एपिथेलियम एंड देयर विल बी फ्लूइड रेटिना के नीचे एंड रेटिना के अंदर। ये फ्लूइड कहाँ से आया? इट इज कमिंग फ्रॉम द लीकेज ऑफ कोरियो कैपिलरीज। ओके, सो लेट्स सी द OCT पिक्चर। So this is the OCT picture. Now you can see this is the layer of कोरियो कैपिलरीज। okay, this is the layer of pigment epithelium। ये जो white line है ना, ये pigment epithelium की लाइन है, एंड ये जो पूरा उठा हुआ हिस्सा है ये pigment epithelium detachment हो गया है, यानी
कोरियो कैपिलरीज का फोर्स ऑफ ब्लड वेसल्स इतनी ज़्यादा है क्योंकि इसने पिगमेंट एपिथेलियम को उठा दिया, ऐसा डोम शेप बना लिया। ओके, सो दिस इज द पिगमेंट एपिथेलियम डिटैचमेंट एंड व्हाट यू आर सीइंग ओवर हियर इज सबरेटिनल फ्लूइड। ये काला रंग का जो है ना, एक सबरेटिनल फ्लूइड है। ये वाला जो काला रंग का फ्लूइड है ये दिस इज सबरेटिनल एंड दिस इज इंट्रारेटिनल, रेटिना के अंदर भी फ्लूइड है ना। सो दिस इज द ओसीटी पिक्चर। नाउ हाउ विल यू ट्रीट दिस पेशेंट? दिस पेशेंट हैज कम टू यू, इज ओल्ड एज पेशेंट, एंड इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, उसका कंप्लेंट क्या रहता है ARMD के पेशेंट्स में? ARMD के पेशेंट यूजुअली कम्स विद डिफेक्टिव सेंट्रल विजन, उनको बीच का हिस्सा नहीं दिखता है। अगर आप पेशेंट की सिम्टम्स देखोगे ना तो वो आपको देखेंगे लेकिन आपका चेहरा उनको नहीं दिखेगा, सेंट्रल विजन लॉस होता है उसमें। तो आपको इसको आप ट्रीट करना है तो आप क्या उसको समझाओगे, क्या ट्रीट करोगे, प्रोग्नोसिस कैसे समझेगा, ये अपने उनको डिसाइड करेंगे। तो व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शन, जल्दी जल्दी बता दीजिए इसमें क्या है, क्या ड्रग कौन सा देंगे? एंटी-VEGF, anyone else और कुछ? So we'll start this patient on anti-VEGF, okay? That is the first line treatment. Anti-VEGF में भी कौन सा anti-VEGF? अब इसमें देखिए ये जो केस है, again we have ranibizumab, we have Peginix. तो जो Peginix नया मॉलिक्यूल आया है ब्रोलुसिजुमैब, it is far more effective in treating these PEDs. ये जो इतने बड़े बड़े PEDs हो जाते हैं उसमें उसका इफेक्ट बहुत अच्छा है। So we will start this patient on anti-VEGF, preferably Peginix if the patient can afford it, अगर उससे स्टार्ट करेंगे। और इसमें जो हमारा जो ट्रीटमेंट रहता है इट इज़ मंथली डोजेस ऑफ इंजेक्शन फॉर एटलीस्ट 3 मंथ एंड उसके बाद PRN रेजिम यानी एज एंड व्हेन नीडेड, जब जरूरत पड़ी तब। लेकिन पहले 3 डोजेस देते हैं। स्टडीज़ में ये देखा गया है कि जिनको पहले 3 डोजेस दिए हैं उनका ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कम इंजेक्शंस लगे हैं रादर कि जिनको पहले ही PRN डोजेस में शिफ्ट किया है, यानी पहले एक इंजेक्शन लगाया फिर वेट किया है, फ्लूइड कम हो गया फिर लगाया फिर वेट किया। तो स्टडीज़ में ये पाया गया है कि गिव 3 बोलस डोजेस ऑफ इंजेक्शन एंड देन शिफ्ट द पेशेंट ऑन PRN रेजिम। कॉस्ट ज़्यादा है सर, एसेंट्रिक्स का कॉस्ट इटसेल्फ रेनिविजुमैब का 25,000 का है और ये अराउंड 35,000 के ऊपर है, लेकिन पर इंजेक्शन। अभी जो इंडियन बायोसिमिलर से वो 15,000 तक आ जाते हैं, उनका इफेक्ट भी बहुत अच्छा है, लेकिन पेजिनेक्स इज मीन्ड फॉर दिस कंडीशन। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट डोज वी हैव गिवन टू दिस पेशेंट और ये 1 महीने बाद का पिक्चर है। व्हाट यू कैन सी इन दिस पिक्चर आफ्टर गिविंग द फर्स्ट डोज, देखो ये जो PAD का डोम है ये बहुत छोटा हो गया, नैरो है ना, लेकिन ये वाले PAD भी फ्लैट हो गए हैं। यहाँ पे जो डोम्स थे, यहाँ पे जो फ्लूइड है, यहाँ पे जो ब्लैकिशनेस है ना, ये गायब हो गया है ना। और ये वाला जो पूरा एरिया है ये कोलेज होके एक बड़ा एरिया बन गया है ना। तो अब ये वी हैव गिवन अनदर डोज ऑफ Peginix टू दिस पेशेंट, बट व्हाट हैपेंड टू दिस पेशेंट, 2 डोज लेने के बाद ही लॉस्ट टू फॉलो, तीसरे डोज के बाद वो आएंगे, यानी दूसरे डोज के बाद आएंगे। ही केम अगेन आफ्टर द इफेक्ट 1-2 महीने के बाद। लेट्स सी व्हाट हैज हैपेंड टू दिस पेशेंट। दिस इज द लार्ज, अब ये क्या है, अगेन सबरेटिनल फ्लूइड है, इंट्रारेटिनल है, प्री रेटिनल है, ब्लड वेसल्स दिख रहे हैं ना इसमें। दिस इज अ लार्ज सबरेटिनल फ्लूइड, ओके। तो लार्ज सबरेटिनल फ्लूइड है और इतना सारा ब्लड है। अब ये जो इंजेक्शन हम लगाते हैं है ना, ये हिमरेजेस को कम नहीं करते। हिमरेजेस टेक केयर, द बॉडी टेक्स केयर ऑफ हिमरेजेस बाय इटसेल्फ। ये है एंटी वेस्कुलर ग्रोथ फैक्टर, ओके। ये ब्लड हिमरेज को रिजॉल्व नहीं करता। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब क्या ट्रीटमेंट बचा है इसमें? अब हमको हिमरेजेस को भी सरकाना है और हमको जो ऑलरेडी PED जो लार्ज सीएंजियम बन गया है उसको भी ट्रीट करना है। तो वी हैव टू गिव अनदर डोज ऑफ इंजेक्शन, बट उसके साथ इस कंडीशन में क्या करते हैं ना, C3F8 गैस आता है। C3F8 इज एन एक्सपेंसल गैस एक्सपांड होता है 4 गुना 6 गुना। तो उसको कम करने के लिए उसको डाइल्यूट करके आग के अंदर गैस डाल देते हैं और पेशेंट को प्रोन पोजीशन में लिटाते हैं, उल्टा लिटाते हैं, ताकि गैस जो है मैक्यूला के ऊपर जाके, गैस हल्की होती है तो
तो अगर पेशेंट इस पोजीशन में है तो गैस ऊपर जाएगी और मैक्यूला आपको हिट करेगा। समझ में आ रहा है? तो इस केस में हमने AC टैप किया, इंट्राविट्रल C3F8 0.3 ml गैस दिया, ये 4 गुना हो जाती है, तो 4 गुना होने के बाद ये हो जाएंगी 1.2 ml, और रैनिक्यूजुमैब बायोसिमिलर इंजेक्ट किया है। ठीक है, ऑन स्टिक प्रोन पोजीशन इज एडवाइस। तो सी व्हाट कैसे रिजॉल्व होता है। 2 महीने बाद की पिक्चर है, 1 महीने बाद की पिक्चर है, और ये फाइनल पिक्चर है पेशेंट की। ओके, तो हिमरेजेस हैज कंप्लीटली रिजॉल्व। जो PED था उसका साइज भी कोलेज होकर इतना रह गया है, और रेटिना भी पूरा फ्लूइड फ्री हो गया है। ठीक है, लेकिन ये पूरा कंप्लीट रिजोल्यूशन ये पेशेंट्स में होता नहीं है, इसलिए हमको पेशेंट को प्रोग्नोसिस बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जो पहले आपकी इतनी नज़र थी, जो इतना एरिया आपको नहीं दिख रहा था, ये कम होकर वो इतना रह जाएगा, लेकिन फिर भी आपको इतना स्पॉट रहेगा ही विल गेन सम विजन बट कम रहेगा। ठीक है, और इनको ये बताना है कि अगर इंजेक्शन नहीं लगाते हैं तो दिस पेशेंट कैन लैंड अप ऑन दिस कंडीशन इज वेल, यानी ये कंडीशन भी आ सकती है। तो ये ट्रीटमेंट इसलिए जरूरी है, दो वी कैनॉट गेट द फुल विजन बट एटलीस्ट वी विल सेव द पेशेंट फ्रॉम दिस कंडीशन। ठीक है, लेट्स कम टू द 5th केस। दिस इज अ 40 ईयर। अब एज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एज आप अगर 60 की उम्र है तो आपके डिफरेंशियल्स बहुत अलग हो जाते हैं। यंग पेशेंट है तो डिफरेंशियल्स बहुत अलग हो जाते हैं। So let's see, this is a 40-year-old male patient with defective central vision since 6 weeks. He is a computer engineer, I guess. It is a high-stress job, maybe a doctor. He is using corticosteroid for asthma. He has no diabetes, hypertension. Denies any trauma. There is no family history as such. What condition might cause central vision loss in young patient, otherwise healthy patient? What's your next step? क्या हो सकता है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैकुलर एडिमा कौन कह रहे हैं? मैडम, मैकुलर एडिमा किस वजह से? ये अस्थमा की कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहा है, उसका साइड इफेक्ट। यस, लेकिन उससे मैकुलर एडिमा नहीं होता है। मैकुलर एडिमा एंड CACR इज टोटली डिफरेंट कंडीशन। ठीक है, CACR में देयर इज अ सेपरेशन ऑफ रेटिना फ्रॉम RPE, पूरा का पूरा रेटिना सेपरेट हो जाता है। मैकुलर एडिमा में एडिमा जो है वो रेटिना के अंदर है, सिस्टोइड स्पेस है या लेयर सेपरेट हो गई, इसमें पूरा पूरा रेटिना सेपरेट हो गया। तो द टर्म्स आर वेरी डिफरेंट। ओके, सो द मोस्ट कॉमन डिफरेंशियल डायग्नोसिस इज CACR इन दिस पेशेंट। सो कैन यू सी द डोम? ओके, सो व्हाट इन्वेस्टिगेशन वुड यू डू इन दिस पेशेंट? OCT एंड और OCT तो कर देंगे, और क्या देखना है इसमें? एंजियोग्राफी क्यों? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं से फ्लूइड आ रहा है। तो फ्लूइड कहाँ से आ रहा है वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है नोट करना, क्योंकि अगर वो पॉइंट हमें पता चल गया तो एट दैट पॉइंट वी कैन डू फोकल लेजर। उस पॉइंट पे फोकल लेजर करने के बाद रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आता है, वो पॉइंट से लीकेज बंद हो जाता है। तो दिस इज द OCT पिक्चर। जैसे मैं मैडम बता रहा था, इसमें पूरा का पूरा रेटिना सेपरेट हो गया एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी दिस PED एज वेल, जहाँ से लीकेज हो रहा है CACR में, एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ जहाँ से लीकेज है। सो इंक ब्लॉट पैटर्न कहते हैं इसको। सो इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे AMD से? वेट ARMD और इसमें से डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे आप OCT पिक्चर में? मैंने जब अभी वी हैव ऑलरेडी सीन द AMD पिक्चर, है ना, और ये CACR का पिक्चर है। क्या डिफरेंस है दोनों में? अगर आपको मैंने यही पिक्चर दे दिया रहता तो आपने उसको कैसे डिफरेंशिएट किया रहता? सो सी, वेट ARMD में सबसे पहले क्लिनिकल पिक्चर में फंडस फोटो में देयर वाज हेमरेजेस, है ना, देयर वाज हेमरेजेस। सेंट्रल CACR में यूजुअली देयर आर नो सच थिंग, द विच फंडस इज मोस्ट ऑफ द टाइम क्लियर। दूसरा कि बोर तो नहीं हो रहे ना दूसरा कि सेंट्रल सीरस रेटिनोपैथी में जो OCT पिक्चर होता है उसमें ये पूरा का पूरा रेटिना सेपरेट हो जाता है। उसमें रेटिना सेपरेट थोड़े से पॉइंट में दिखेगा आपको अगर फ्लूइड कम है तो CACR यानी वेट AMD में, और मोस्ट ऑफ द टाइम देर विल बी
सब रेटिनल हिमरेजेस वाइट रंग के, और रेटिना के अंदर सिस्टर्ड स्पेसेस भी दिखेंगे। ये देखिए, इसमें देखिए लेयर्स भी सेपरेटेड है, सब रेटिनल फ्लूइड भी है, पीडी भी सेपरेटेड है, और रेटिना पूरा का पूरा उठा नहीं है ना। CACR में क्या था, पूरा का पूरा रेटिना ही सेपरेट हो गया है ना। तो दिस इज CACR। सो अब इसमें करेंगे क्या, हाउ विल यू इंटरवीन फॉर दिस पेशेंट। CACR का पेशेंट तो आ गया, तो यू विल डू एन एंजियोग्राफी फर्स्ट। एंजियोग्राफी अगर है OCT है तो एंजियोग्राफी OCT करना है। एंजियोग्राफी में कोई लीकेज पॉइंट है तो वो देखना है, इसलिए देखना जरूरी है कि हमको बेसलाइन पता होना चाहिए प्राइमरी सोर्स ऑफ लीकेज क्या है, ठीक है। वंस दैट इज डन, नेक्स्ट क्या करेंगे। यस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। पेशेंट ऑलरेडी स्ट्रेस में है, 40 साल का लड़का है, स्ट्रेस में है, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रेस इज वन ऑफ द इडियोपैथिक फैक्टर तो नहीं बोलूँगा, इटियोलॉजिकल ये है। तो स्ट्रेस कम करना है, किसी भी फॉर्म में स्टेरॉइड ले रहा है तो वो बंद करना है, राइट। और एक्टिव इंटरवेंशन में यूजुअली दिस इज द इटियोलॉजी इज नॉट नोन फॉर CACR। क्यों हो रहा है किसी को पता नहीं है, इट्स अभी भी रिसर्च चल रही है। तो द ट्रीटमेंट, एक्टिव ट्रीटमेंट इज, देयर इज नो सच एक्टिव ट्रीटमेंट पर से, but we start the patient on non-steroidal anti-inflammatory drugs, and there are some studies where eplerenone से फ़ायदा मिला है 50% केसेस में। तो we can give eplerenone is a anti-hypertensive drug which can be given in such cases, and usually the resolution in most cases is good in CACR. So this is the day-wise resolution of CACR, and some cases may land in chronicity. If the patient land in chronicity, तब PDT वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में अभी PDT भी होता नहीं है। और क्रॉनिसिटी में लैंड होने के बाद ट्रीटमेंट यूजुअली प्रोग्नोसिस खराब ही होता है पेशेंट का। कौन सा पेशेंट क्रॉनिसिटी में लैंड होगा नहीं होगा, दैट नो वन कैन टेल CACR। सो कमिंग टू द 6th केस, सो मिसेस सेनगुप्ता, शी इज 67-year-old female, has complaint of central vision in left eye since 6 weeks. Noticing difficulty in reading newspaper, left eye is unaffected. Okay, sorry, ये right eye होना चाहिए। She underwent a complicated surgery in right eye 8 weeks ago. She has no diabetes, mild hypertension, no prior eye disease. Visual acuity is reduced to 624. She denies any floaters, pain, flashes. She has mild photophobia. Okay, 68-year-old lady which has undergone cataract surgery 8 weeks back, now is complaining of defective central vision. आपके पास से कैटरेक्ट सर्जरी करा के गई है, अब 2 महीने में अभी उसको दिख नहीं रहा है नज़दीक का, थोड़ा सा फोटोफोबिया भी है। क्या? वेरी गुड, pseudophakic macular edema. Okay, तो नेक्स्ट डायग्नोस्टिक स्टेप, हाउ विल यू आइडेंटिफाई। यूजुअली द फंडस पिक्चर लुक्स ओके, बट यू हैव टू सी वेरी सटनली ऑन 90D कि देयर इज इडिमा और नॉट। इसमें जो इडिमा होगा इट इज पेटल शेप इडिमा, फ्लावर पेटल शेप इडिमा रहता है, ओके, पेटलॉइड इडिमा। सो द OCT पिक्चर टिपिकल सिस्टॉइड मैकुलर इडिमा जिसमें इंट्रारेटिनल सिस्टॉइड स्पेसेस अवेलेबल है, ओके, एंड देयर इज अ सबरेटिनल फ्लूइड, may not be subretinal fluid, but cystoid macular edema इस तरीके का दिखेगा। Okay, what another investigation will you look for in this case? What can you all also do? You can go for fundus fluorescein angiography. Why? Because to differentiate between again some cases diabetic, to differentiate between diabetic macular edema and cystoid macular edema. In cystoid macular edema basically there is a inflammatory component जिसके वजह से edema हो रहा है रेटिना में। तो because there is inflammatory component on angiography you will see सब, पहले तो क्योंकि ये पेडल शेप रहता है तो यहाँ पे पेडलॉइड अपीयरेंस रहेगा मैकुला पे। ऑल्सो देयर इज डिस्क इन्फ्लेमेशन, डिस्क भी लीकी, वाइट हॉट डिस्क, ओके। सो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन की वजह से जब आप FFA करोगे तो डिस्क भी वाइट रहेगी, लेकिन डायबिटिक मैकुलर एडिमा में ये जो डिस्क है इतनी वाइट नहीं होती, ओके। ऑल्सो डायबिटिक, आगे बढ़ते हैं, तो डायग्नोसिस वी हैव नो, हाउ डज OCT एंड FFA हेल्प्स टू कंफर्म इट, मैंने बता दिया आपको, ठीक है।
and how it will differentiate between diabetic macular edema and vitreomacular traction. तो इसमें डायबिटीज़ में आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? डायबिटिक के केस में आपको बाकी चेंजेस भी रहेंगे, हिमरेजेस, हार्ट रेट, ये सब इसमें नहीं रहेगा, ओके. लेकिन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ डायबिटिक मैकुलर एडिमा एंड स्यूडोफिकिक एडिमा इन पेशेंट्स ऑफ डायबिटिक, जिसमें ऑलरेडी डायबिटिक के चेंजेस भी हैं और स्यूडोफिकिक एडिमा है. इन दैट केस यू हैव टू डू एंजियोग्राफी, फिर उसमें आपको डिफरेंशिएट. लेकिन ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा. अगर इतना मैकुलर एडिमा है तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? हाउ विल यू मैनेज दिस पेशेंट? एनीवन फ्रॉम द पीजीज नाउ? यू हैव डायबिटिक मैकुलर एडिमा या नहीं? स्यूडोफिलिक पेशेंट तो आ गया सीईई के साथ, अब क्या करेंगे? एनीवन? जस्ट गेस नेक्स्ट स्टेप. So usually such cases can be treated with topical steroid or topical NSAIDs, जैसे नेपाफिनाइक हो गया. और we can check for this patient for 3 to 4 weeks कि इसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो सकता है समय के साथ रिजॉल्व हो जाए. ओके, सो फर्स्ट वी विल चेक वेदर NSAID से ये ठीक हो रहा है कि नहीं. अगर उससे भी ठीक ना हो तो देन यू हैव टू गिव दिस पेशेंट एंटी-VEGF इंजेक्शन और सबटेनल इंजेक्शन ऑफ PST और इंट्राविट्रल ट्रांसिलिनोन एसिटेट स्टेरॉइड का इंजेक्शन देना पड़ेगा. उससे रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, फास्ट रिकवरी हो जाती है और पेशेंट विजन भी गेन हो जाता है. ओके, बट दिस शुड बी गिवन आफ्टर ट्रायल ऑफ टॉपिकल स्टेरॉइड. अगर एडिमा बहुत ज़्यादा और पेशेंट लेट प्रेजेंट किया हुआ है so you can directly give steroid for this patient. Okay, so case number 7. This is a Mrs. 60-year-old male female patient. She is a homemaker. She has come with vision loss in left eye for 4 months and she described some missing patches. बीच का अक्षर नहीं दिखता है ना? बीच का अक्षर दिख नहीं रहा है. No diabetes, no hypertension, history of myopia. Vision in left eye is reduced to 660. There is no history of pain, no history of trauma. क्या हो सकता है? Macular hole और differentials. Macular hole एक अच्छा डिफरेंशियल डायग्नोसिस है. रेटिना में फोकल एरिया में फोविया में कभी कभी रेटिनल हिमरेज हो जाता है, जो वाल्सलवा भी बोलते हैं, वाल्सलवा रेटिनोपैथी. या अगर डायबिटिक पेशेंट तो है ही नहीं है, लेकिन डायबिटीज़ की वजह से भी कभी कभी फोविया में ब्लड डिपॉजिट हो जाता है, उसमें भी मिसिंग स्पॉट हो सकता है. लेकिन अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं. इसमें डीडीज हमने डिस्कस कर लिया. व्हाट इमेजिंग वुड कंफर्म द सस्पिशन? अगेन हमारे पास 3 ही ऑप्शन है, फंडस फोटो, OCT. ओके, so this is the OCT picture and what is the OCT picture suggest of? Macular. This is the full thickness macular hole. And what is this? ERM जो है एपिरेटिनल मेम्ब्रेन का छोटा सा ऊपर निकला है. जो है वो लाइनिंग. This is विट्रोमैक्युलर ट्रैक्ट. ये इंटरफेस है जो रिलीज हो चुका है, पीवी हो चुका है. तो ये OCT में बहुत अच्छा से दिख रहा है पीवी, पोस्टीरियर विट्रियस डिटैचमेंट. ओके, सो दिस पेशेंट, हाउ विल यू ट्रीट दिस पेशेंट नाउ? क्या करेंगे? एनी मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट? देयर इज नो मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट. यू हैव टू एडवाइज दिस पेशेंट फॉर सर्जरी. कब करेंगे सर्जरी? as soon as possible. क्योंकि इसमें जैसे जैसे टाइम पास होगा तो ये डिस्टेंस बढ़ता चले जाएगा, क्रॉनिसिटी में जाएगा पेशेंट एंड विजन विल प्रोग्नोसिस विल फर्दर डिटोरिएट. ओके, सो दिस इज द पोस्ट ऑफ इमेज ऑफ द पेशेंट हु हैज अंडरगोन विट्रोमैक्युलर सर्जरी. इसमें क्या होता है, ये वाला पोर्शन को हम लोग करते ये हैं सर्जरी में. इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन जो रहती है, जो फर्स्ट लेयर रहती है रेटिना की, उसको रिमूव कर देते हैं. तो जो हॉरिजॉन्टल ट्रैक्शन है वो कम हो जाता है. हॉरिजॉन्टल ट्रैक्शन कम हुआ
तो ये जो अपर पॉइंट है, ये वाला पॉइंट यहाँ नीचे आ जाता है, ये वाला पॉइंट नीचे आ जाता है ना। और इसमें C3 इफेक्ट गैस जो मैंने बताया आपको 0.3% को डाइल्यूट करके डाल देते हैं। तो इट टेक्स अराउंड, जब ये मैकुलर होल सर्जरी करते हैं तो C3 इफेक्ट गैस को कम होते होते 1 महीना लग जाता है, तो तब तक पेशेंट को दिखता नहीं है कुछ, ठीक है। एंड व्हेनेवर देयर इज C3 इफेक्ट गैस इन पेशेंट्स है, what precaution will you advise to the patient? Prone position and any ठीक है, वो भी अवॉइड फ्लाइट फ्लाइट में नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि C3 इफेक्ट गैस जब डालते हैं और जब हम फ्लाइट में ऊपर जाते हैं तो वो और डिकम्प्रेस होती है और एक्सपांड हो जाती है। तो हम जो गैस डालेंगे उसके वजह से प्रेशर बढ़ सकता है, इसलिए हमेशा फ्लाइट अवॉइड करनी है सारे पेशेंट्स को, जब तक कि वो गैस पूरी निकल नहीं जाती। 1 महीने में गैस पूरी निकल जाती है, ठीक है। तो दिस इज द लास्ट केस। दिस इज अ 35-year-old construction worker came with sudden diminution of vision in left eye for 2 days, describing red spot blocking his central vision. ठीक है, right eye is unaffected. He has no history of diabetes, no history of hypertension. ठीक है, he reports a severe coughing episode. ठीक है, 3 days ago, and there is no history of trauma, bleeding disorder. Vision in visual acuity is reduced to 20/200, 6/60. ठीक है, what is your first differential diagnosis? Yes, Valsalva retinopathy. And what will you find in Valsalva retinopathy in this case? I will show you the picture. So this is the picture of central hemorrhage in the macula. So diagnosis has been made. What? अब डायबिटिक सब हाइलाइट हेमरेज और वाल्सल्वा रेटिनोपैथी में क्या डिफरेंस? कभी कभी आप देखना डायबिटिक पेशेंट में भी सेम पिक्चर दिखता है। सिंपल है, डायबिटिक में डायबिटिक के बाकी के साइंस रहेंगे, वाल्सल्वा में उसकी हिस्ट्री रहेगी, बाकी के साइंस नहीं रहेंगे, हेमरेजेस नहीं रहेंगे, हार्ट एक्सीडेंट, लिपिड डिपॉजिशन सब नहीं रहेगा। ओके, सो हाउ विल यू ट्रीट दिस पेशेंट? विल यू ट्रीट दिस पेशेंट मेडिकली, यू डू लेजर और यू डू सर्जरी? क्या करेंगे इसमें? पेशेंट तो आ गए, नेक्स्ट आप एडवाइस क्या करोगे? देखिए, इसमें डिपेंड करता है सब जो अब ये जो लेयर है सब हाइलाइट हेमरेज का, ये रेटिना के आइलम के ऊपर है, रेटिना में नहीं है ना, रेटिना के नीचे है। अभी इसमें कैसे समझेगा? रेटिना के ऊपर है, इसमें देखिए ब्लड वेसल्स नहीं दिख रही है ना, देखिए नो ब्लड वेसल्स, तो ये रेटिना के ऊपर है। अगर अब इसमें भी जो फोबिया है वो स्टेयर हो गया, थोड़ा सा फोबिया यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हेमरेज है, यहाँ पर सब हाइलाइट ब्लड है, लेकिन जो मेन जो हेमरेज है नीचे है, ठीक है, तो फोबिया स्टेयर हो गया। यही अगर ये फोबिया के ऊपर होता तो वी वुड हैव इंटरवीन अर्ली, क्योंकि ज़्यादा दिन तक अगर फोबिया के ऊपर ब्लड रहा तो वो कॉम्प्रेस करता है फोबिया, है ना, रेटिनल जो कोन्स है, रॉड्स एंड रिसेप्टर्स है वो अफेक्ट होता है। तो वी विल इन सच केसेस वी विल वेट फॉर सम टाइम। अगर रिजोल्यूशन नहीं होता है तो क्या करना? लेजर में क्या करेंगे? एफएफए की सर इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है अभी, क्योंकि हमको सीधा सीधा दिख रहा है, डायग्नोसिस हमने बना दिया है। एफएफए का रोल था हमको डायग्नोसिस को एनहांस करने के लिए। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें ये जो सबसे डिपेंडेंट पोजीशन है इसको लेजर का शॉट मारते हैं, ताकि जो सब हाइलाइट जो है उसको ब्रेक करते हैं, ताकि जो हाइलाइट और रेटिना के बीच में जो ब्लड है वो विट्रियस के अंदर आ जाए, है ना, विट्रियस के अंदर आ जाए। तो वो क्योंकि ये ना एक एनकैप्सुलेशन है, यहाँ पर ये पूरा कैप्सूल के अंदर है, तो बेसिकली वो कैप्सूल को हमको ब्रेक करना होता है। वो ब्रेक कर दिया तो विट्रियस में ब्लड आ जाएगा, ब्लड वहाँ विट्रियस में आ गया तो इट विल एब्जॉर्ब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो उसको ये पॉइंट पे लेजर किया है तो इस तरीके से ब्लड बाहर आना शुरू हो जाता है। ओके, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर कभी कभी क्या होता है, इवन आफ्टर डूइंग लेजर्स सब हाइलाइट हेमरेज ब्रेक नहीं होता, जो पॉइंट है जहाँ से निकलना चाहिए ब्लड वो ब्रेक नहीं होता। इन दैट केस इफ द लेजर फेल्स वी हैव टू गो फॉर सर्जरी, देयर इज नो अदर ऑप्शन, जिसमें अंदर जाके हम वो लेयर को निकाल देते हैं और पूरा विट्रेक्टोमी कर देते हैं। ठीक है, दीज आर द ऑप्शन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकेंड लेजर, थर्ड सर्जरी। ओके, सो
just few questions for the PGs. What is the first line treatment for pseudophakic CME? Topical steroid alone, topical NSAIDs, combination of NSAID and topical steroid, anti-VEGF. आंसर ऑलरेडी Option C. ऑलरेडी आंसर आ गया अच्छा ठीक है अभी चलो ठीक नेक्स्ट व्हाट इज द अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट फॉर स्टेज 3 मैक्युलर होल इट्स स्पार्स क्लीनर विट्रेक्टोमी विद आयरन पिलिंग ओके फिर फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर डायबिटिक मैक्युलर एडिमा इट्स एंटी-VEGF इंजेक्शन ओके एंड most appropriate initial management for acute CACR is observation and corticosteroid discontinuation. Okay. Thank you. Any questions? If there is any. Ozurdex injection IOP and Yes. So Ozurdex जो है see before Ozurdex we had triamcinolone acetate जिसका हम लोग डायरेक्ट इंट्राओकुलरली डालते थे ठीक है उस समय प्रॉब्लम ये होता था IVTA का कि IVTA के वजह से ट्राइमसिलोन जो डालते थे उसमें जो प्रेशर है ना बहुत सडन राइज होता था क्योंकि इट्स जस्ट लाइक एन एटम बॉम्ब हमने बहुत सारा स्टेरॉइड आग के अंदर डाल दिया ठीक है और कैटरेक्ट का फॉर्मेशन भी बहुत फास्ट होता था तो overcome these complication of triamcinolone acetate IVTA Ozurdex की बनाओ Ozurdex आया मार्केट Ozurdex is a dexamethasone implant 0.7 mg का रहता है when injected inside it releases dexamethasone over the period of 4 months to 3 to 4 months very slow release तो जितना उसका इफेक्ट होना चाहिए उतना ही वो आँख में रहता है तो उसमें ये जो IOP स्पाइक्स हैं ये होते नहीं है जो IOP है वो काफ़ी मेंटेन रहता है दूसरा जो कैटरेक्ट के चांसेस है जो IVTA में होते थे वो नहीं होते ठीक है कैटरेक्ट सेकेंड थर्ड डोज के बाद ज़्यादा होता है ओजुडेक्स में दूसरा ओजुडेक्स जो है जैसे एंटी-VEGF जो है सिर्फ वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर पे काम करता है ओजुडेक्स जो है बाकी के जो इन्फ्लामेटरी मार्कर्स है जो साइटोकाइंस है इंटरल्यूकिन्स है उनको भी इफेक्ट करता है उनको भी अफेक्ट करता है तो ओवरऑल उसका जो एफिकेसी है वो ज़्यादा है ओजुडेक्स लेकिन उसको सेकेंड लाइन इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उसके अदर कॉम्प्लिकेशन जो है IOP और कैटरेक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करने के यानी वो ना हो अगर थोड़े भी चांसेस है वो ना हो इसलिए हम रेनिविजुमेब या एंटी-VEGF यूज़ करते हैं इसलिए फर्स्ट लाइन नहीं तो अगर ये कॉम्प्लिकेशन नहीं होते तो ओजुडेक्स वुड हैव बीन द फर्स्ट लाइन और सेकंड क्या है कि इनिशियल अपफ्रंट कॉस्ट ओजुडेक्स से ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रेनिविजुमेब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में भी उसके जब अपफ्रंट कॉस्ट कम हो जाएगा तो इट विल बी मोर ज़्यादा चलन में आएगा Any other questions? सर ने बहुत ही एंगेजिंग लेक्चर दिया है अप्रिशिएट करना पड़ेगा सर को Thank you. सबकी कंसेप्ट क्लियर करा दी